Hi, so it's a day two of excelling at competitive programming. So today will be solving A to Z ladder 11 to 20th question. The ladder is for rating less than 1300, and these are my credentials. My code forces handle is marks 1110, and my current rating is 668. I have attended two contests till date. As you can see, we will be solving 11 to 20th. So let's begin our first question, that is panoramics prediction. So this is problem 69th round, A problem, which is panoramics prediction. Let's see what does the problem say. Let me zoom it in for you. So the problem says a prime number is a number which is exactly two distinct divisors, one and itself. For example, numbers 273 are prime and 164 are not. Okay, this is the definition of prime number. I guess all of you know it. The next prime number after x is the smallest prime number greater than x. Definition of next prime number is it says it is the smallest prime number after x. Okay. For example, the next prime number after 2 is 3 and the next prime number after 3 is 5. Note that there is exactly one next prime number. There is exactly one next prime number after each number. So 5 is not the next prime number of 2 because 2 is prime, next prime is 3. So 5 comes after 3, so 5 is not the next prime number for 2. Now the problem continues. It says the one cold April morning, Panoramix predicted that soon Cacophonics will break free from his straitjacket and this will be a black day for the residents of the Gallic countryside. Panoramics prophecy tells that if someday Asterix and Obelix beat exactly X Roman soldiers, where X is a prime number, and next day they beat exactly Y Roman soldiers, where Y is the next prime number after X, then it's time to wait for Armageddon, for nothing can shut Cacophonics up while he sings his infernal songs. If you are not able to understand what it's saying from here to here, no problem. I also didn't understand this. Right? It says yesterday the Gauls beat N Roman soldiers, and it turned out that number N was prime. Today they are victims for a troop of M Romans. M is greater than N. Determine whether the Gauls should wait for the Black Day after today's victory of Asterix and Obelix. The input says we will get N and M, and the see. I only saw this. Print yes if M is the next prime number after N, no otherwise. If you don't understand this, no problem. What do you have to do understand? We just have to tell if M is the next prime number after N. Okay. So हमको क्या बताना है कि if M is the next prime after N, then C out yes, else C out no. Okay. ऑल्सो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि n इज प्राइम, तो हमको ये गिवन है कि n इज प्राइम, बट m के बारे में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि m प्राइम है कि नहीं है, और हमको एक और गिवन है कि m इज ग्रेटर देन n. ठीक है, तो नेक्स्ट प्राइम होने की दो कंडीशंस क्या थी कि m प्राइम होना चाहिए और m ग्रेटर देन n प्लस m स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, मतलब m शुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन n सच दैट इट इज प्राइम. ये होती है नेक्स्ट प्राइम की डेफिनेशन. ओके, सो हमको ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, ये गिवन है. तो मैं क्या करता हूँ ना, देखो एन हमारे को गिवन है, नेक्स्ट टर्म कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, एन प्लस वन से लेके इन्फिनिटी तक. अब इन्फिनिटी से पहले लाई करता होगा एम, करेक्ट. अब ये लिखा हुआ है कि एम 4 से कम है प्री टेस्ट में और एम 50 से कम है टेस्ट में. ओके, एम 50 से कम है तो इन्फिनिटी से तो पक्का कम है. अब हमको ये चेक करना है कि अगर एम प्राइम नहीं है तो सीधा नो रिटर्न कर दो. पहले एम को प्राइम के लिए चेक कर लो, ठीक है. अगर एम प्राइम है तो क्या करो, इस रेंज से लेके एन प्लस वन से लेके
m-1 तक चेक करो। अगर कोई नंबर प्राइम निकलता है तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना कि m स्मॉलेस्ट है। इन दैट केस ऑल्सो रिटर्न नो। अगर ये सारी ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो सी आउट यस। तुम कैसे करेंगे इसको? मैं अपना कोड खोलता हूँ, जूम कर लिया मैंने आपके लिए, एक मिनट। हाँ, थोड़ा इसको बस अपनी एसटीएल इंक्लूड कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे एसटीएल की काम नहीं पड़ेगा, बट एसटीएल इंक्लूड करना मेरे को थोड़ा बेटर लगता है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मेन फंक्शन बनाया आपने अपना, रिटर्न 0 एट द एंड। उसका क्या करना है हमको? इंट n कॉमा n, इट सेज फर्स्ट ओनली इनपुट एंड कंटेन्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स n एंड m। हमको n एंड m देना है और हमको बस यस नो बताना है। n एंड m हमको मिल गया। अब हमारी पहली कंडीशन क्या थी? इफ अगर वो प्राइम ही नहीं है m, देन सी आउट नो। अगर वो प्राइम है तो i को n+1 से लेके i लेस देन m, m-1 तक जाओ और i प्लस प्लस। इफ अगर i प्राइम है तो नो प्रिंट कर दो, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया हमको जो प्राइम है और m से छोटा भी है, ठीक है, और ब्रेक कर दो। बट बाहर रेफरेंस रखने के लिए मैं ऊपर एक वेरिएबल बना देता हूँ, इंट चेक, जो बताएगा कि नो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं लूप के अंदर। यहाँ पे चेक इक्वल्स टू 1 कर दो। अगर बाहर इफ चेक इक्वल्स टू 0, मतलब नो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, हमको कोई प्राइम नंबर नहीं मिला, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सी आउट कर देंगे यस। ये इसको रन करके देखता हूँ, क्या पता कोई एरर ना हो। अच्छा, हमने प्राइम को डिफाइन नहीं किया अभी। प्राइम को कैसे करते हैं हम? सबको पता होगा, डीएस से करना बात तो सबको पसंद ही होता है जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। हमको एक नंबर मिला, हम लोग कहाँ से चलाते हैं? 2 से लेके i स्टार i लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस इफ n परसेंटाइल i इक्वल्स टू 0। उस केस में क्या करो? रिटर्न फॉल्स कर दो कि हमको मिल गया कोई और, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। अब एक बार रन करके देखते हैं कंपाइल विंडो को। चल गया कंपाइल विंडो। 3-5 के लिए क्या आंसर आता है? यस। यहाँ पे क्या देखते हैं? यस, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं इसको। सबमिट विंडो खोल ली, कंट्रोल वी करा, सबमिट करा। यहाँ पे आना चाहिए आंसर एक्सेप्टेड का, एक्सेप्टेड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं इसे कोड की जो आपका सॉल्यूशन कोड है ना, उसके गिटहब पे डाल के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा फॉर द गिटहब प्रोफाइल। एंड इफ यू आस्क, मैं काम करूंगा सबके सॉल्यूशन कोड की ना, सॉल्यूशन कोड की फाइल भेज दूंगा आपको, सॉल्यूशन कोड का ही लिंक दे दूंगा सीधा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है अल्ट्रा फास्ट मैथमेटिशियन। नोट्स एरिया को एक बार क्लीन कर लेते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू। सो दिस इज प्रॉब्लम राउंड 57 था, उसकी प्रॉब्लम ए है। नाम क्या है इस प्रॉब्लम का? अल्ट्रा फास्ट मैथमेटिशियन। ओके, जूम करके देखते हैं प्रॉब्लम क्या कहती है। इट सेज शपूर was an extremely gifted student. He was great at everything, including combinatorics, algebra, number theory, geometry, calculus, etc. He was not only smart but extraordinarily fast. He could manage to sum 10 to the power 18 numbers in a single second. मतलब वो 10 के पावर 18 नंबर्स को एक सेकंड में एडिशन कर सकता था। ओके, वन डे इन 230 AD, Shapur was trying to find out if anyone can possibly do calculations faster than him. As a result, he made a very great contest and asked everyone to come and take part. In his contest, he gave the contestants many different pairs of numbers. Each number is made from digits 0 or 1. The contestant should write a new number corresponding to the given pair of numbers. तो उसने कंटेस्टेंट्स को नंबर्स दिए, दो नंबर्स दिए, नंबर 1 एंड नंबर 2।
हर नंबर बाइनरी 0 और 1 से बना है। इसके अंदर चाहे तो सारे 0 या सारे 1 होंगे, इसके अंदर मतलब इसके अंदर 1 0 और 1 होंगे, कोई और डेसिमल डिजिट नहीं होगी, ठीक है। द कंटेस्टेंट शुड राइट अ न्यू नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन नंबर। इन दोनों नंबर से इसको कंटेस्टेंट्स को एक नंबर बनाना है जो कि हमारा आंसर होगा, और वो कुछ ऐसा दिखेगा। द आयर डिजिट ऑफ आंसर इज 1 इफ एंड ओनली इफ द आयर डिजिट ऑफ टू गिवन नंबर्स डिफर, इन द केस द आयर डिजिट ऑफ आंसर इज 0। अगर मान लो हम ये नंबर है, ये यहाँ पे 1 है और ऐसे यहाँ पे भी यहाँ पे 0 है, तो इस केस में आंसर की जो चौथी डिजिट होगी 1 0 के केस में 1 होएगी। बट अगर वो 1 1 होता तो भी 0 होती, 0 0 होता तब भी ये 0 होती, 0 1 के केस में 1 हो जाती। मतलब ये एक्स और ऑपरेशन टाइप कुछ, ठीक है। बट इसमें एक्स लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्ट्रिंग हैंडलिंग से हो जाएगा। तो इसने क्या करा, शपूर मेड एन नंबर्स and first at his own speed. He saw that he can perform these operations on number of length infinity in a glance. He always gives correct answers who expect the contestant to give correct answers to. He is a good fellow, so he won't give anyone very big numbers, and he always give one person number of same length. Number of same length मतलब number 1 की और number 2 की जो length है वो same है। Now you are going to take part in Shapur's contest. See if you are faster and more accurate. इनपुट में हमको 2 लाइन्स ऑफ इनपुट दी जाएंगी, दोनों के अंदर एक एक नंबर होगा। इट इज गारंटेड दैट नंबर्स आर मेड फ्रॉम 0 एंड 1 ओनली दैट देयर लेंथ इज सेम। दोनों की लेंथ भी सेम है और 0 1 से बने हैं। द नंबर में स्टार्ट विद 0, नंबर 0 से स्टार्ट हो सकते हैं, और द लेंथ ऑफ ईच नंबर डजंट एक्सीड 100, मतलब लेंथ 100 से कम है। हमको क्या करना है, हमको कॉरस्पॉन्डिंग आंसर देना है। क्या करूंगा मैं, इसका एल्गोरिथम जल्दी से बता देता हूँ। इसका एल्गोरिथम होगा कि मान लो कोई नंबर है, इसको स्ट्रिंग की तरह मैं इनपुट लूंगा, इस नंबर को भी मैं स्ट्रिंग की तरह इनपुट लूंगा, और जो आंसर है मेरा उसमें क्या करूंगा, आई को 0 पे रखूंगा, लेंथ मान लो n है तो n-1 तक जाऊंगा, दोनों को चेक करूंगा, दोनों इक्वल हैं तो 0 रखूंगा, दोनों अनइक्वल हैं तो 1 रखूंगा, ऐसे कंटिन्यू करूंगा। सिंपल एल्गोरिदम O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चलेगी इसकी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ 1, ठीक है। आंसर को स्टोर करने का O ऑफ n लग रहा है बस वो, लेकिन आंसर को स्टोर करने का तो क्या ही आंसर होता है, ठीक है। तो क्लीन कर लेता हूँ इसको और रेडी कर लेता हूँ अपने कोड के लिए। जूम कर लेता हूँ थोड़ा और, हाँ। तो हमको 2 लाइन्स कोड मिलेंगी, स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी, पहले हमने ए इनपुट ली फिर बी इनपुट लिया, फिर क्या करना है हमको, मान लो इंट n है ए डॉट लेंथ, ठीक है। उसका क्या करना है हमको, स्ट्रिंग आंसर बनानी है जो कि पहले एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। उसके बाद क्या करेंगे हम, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस इफ ए आई इक्वल्स टू बी आई, तो क्या करो, आंसर प्लस इक्वल्स टू 0 एल्स आंसर प्लस इक्वल्स टू 1। ही तो करना है, बाद में क्या करो, सी आउट आंसर, हमारा कोड हुआ खत्म। कंपाइल रन करके देखते कोई एरर तो नहीं करा हमने, कोई एरर नहीं हो रहा। मैं चेक नहीं कर रहा कि मुझे पता है कि इसमें तो क्या ही गलती होगी एल्गोरिदम में। सबमिट की विंडो खोलते हैं, सबमिट का बटन प्रेस किया, अब यहाँ पे एक्सेप्टेड आना चाहिए, फॉर आंसर इज एक्सेप्टेड, रनिंग 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 ऑन टेस्ट 22 43 99। कोड फोर्सेस टाइम तो लेता ही है यार। Accepted, as you can see accepted। Now moving on to the question number 3 of our today's session, that is question number 13 of the A2OJ ladder, that says perfect permutation। हाँ, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना यार, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट इन द सेंस थोड़ा इंट्यूटिव था, ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लेवल का बोल सकता हूँ मैं। जो अभी तक हमने करे वो इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के नहीं थे, सिंपल इजी लेवल DSC के थे। नोट सेक्शन में चलता हूँ, विंडो करता हूँ क्लियर, आपको समझाना करता हूँ स्टार्ट। तो अब हम कर रहे हैं राउंड 144 की ए प्रॉब्लम, जिसका नाम है परफेक्ट परम्यूटेशन। देखते प्रॉब्लम क्या कहती है। प्रॉब्लम सेज द परम्यूटेशन इज सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स p1 p2 pn कंसिस्टिंग ऑफ n डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, तो हमको गिवन है कि वो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अच्छा जी, ईच ऑफ देम डजंट एक्सीड n, ठीक है, मतलब कि
वो सारे के सारे मतलब n लेंथ का एरे है, तो मतलब ARRI is greater at most n, ठीक है। Let's denote the ith element of permutation as pi. We'll call the number n the size of permutation n, ठीक है। Nicholas adores permutation and he likes some permutation more than the others. He calls such permutation perfect. Perfect permutation की definition क्या लिखी है? Perfect permutation की definition है is such a permutation p that for any I, मतलब कि परमुटेशन क्या थी हमारी, P1 से लेके Pn तक थी ना। ये बोल रहे कोई भी आए, मतलब कोई भी एलिमेंट है इसका, तो उसका क्या है, फॉलोइंग परमुटेशन इक्वेशन होल्ड्स, P of I इक्वल्स टू I एंड P of I इज नॉट इक्वल्स टू I। अच्छा जी। निकोलस आस्क यू टू प्रिंट एनी परफेक्ट परमुटेशन ऑफ साइज n फॉर द गिवन n। हमको n गिवन होगा और हमको कोई भी ऐसी परमुटेशन प्रिंट करनी है, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होएगा देखते हैं। हमारे पास दो कंडीशंस है ना, हमारे को n गिवन है और कंडीशंस क्या हमारी, P of Pi is equals to I, सेकेंड P of I is not equals to I, ठीक है। ये हमारी परमुटेशन है। अगर ये वाली कंडीशन को मैं एक बार छोड़ दूं, मतलब अगर P of I इक्वल्स टू I के लिए निकाल लूं, तो क्या 1 2 3 n एक वैलिड सीक्वेंस है? P of I इक्वल्स टू I मतलब यही सीक्वेंस बनेगा। क्या इसके अंदर ये वैलिड हो रहा है? चेक करता हूँ। फॉर I इक्वल्स टू 1, P of 1 इक्वल्स टू 1, P of 1 हमने क्या माना है यहाँ पे 1, तो P of 1 इक्वल्स टू 1, हाँ तो वैलिड हो रहा है, ठीक है। अब हमको क्या इंक्लूड करना है, P of I नॉट इक्वल्स टू I। मैं इसके फुल स्क्रीन कर देता हूँ। हमको क्या इंक्लूड करना है, P of I नॉट इक्वल्स टू I को इंक्लूड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, P of I नॉट इक्वल्स टू I, हमारे पास n लेंथ है, सपोज n है हमारा 4 यहाँ पे, 1 2 3 4। P of Pi इक्वल्स टू I इक्वल्स टू 1 के लिए काम करते हैं, P of 1 इक्वल्स टू 1, I इक्वल्स टू 2 के लिए करते हैं P of 2 इक्वल्स टू 2। अच्छा जी। तो अगर मैं P1 को 2 मानूं, P1 को 2 मानूं, ठीक है। P1 को 2 मान के क्या होता है, P2 इक्वल्स टू 1 आ जाता है। देखो ना, P1 को यहाँ पे 2 रखूँ तो P2 इक्वल्स टू 1 में आपसे रिड्यूस हो रहा है। अब इस P2 को यहाँ यूज करूँ, मतलब यहाँ, तो इससे क्या होता है, P of 1 इक्वल्स टू 2 आता है। अब यहाँ पे P1 इक्वल्स टू 2 आया, तो ये वाली दोनों स्टेटमेंट वैलिडेट हो गई है। ओके, तो मतलब एक तरीके से पेयरिंग जैसा कुछ लग रहा है मुझे कि 1 को 2 से कर दो और 3 को 4 से कर दो। क्या ये आगे एक्सटेंड हो सकता है? अगर मैं तुम बोलो कि आपने 1 और 2 क्यों चूज किया, 1 और 3 क्यों नहीं चूज किया, चलो वो भी करके देख लेते हैं। हमारे पास n था 4, तो 1 2 3 4, P of I इक्वल्स टू I, ठीक है। I इक्वल्स टू 1 के लिए क्या बनेगा, P of 1 इक्वल्स टू 1। I इक्वल्स टू 3 के लिए क्या बनेगा, P of 3 इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, आप बोल रहे हो 1 और 3 में पेयरिंग करो, तो मैं बोलता हूँ P of 1 को एक बार 3 मान लो, ठीक है। तो उससे क्या आता है हमारे पास, P of 1 को 3 हमारे पास P of 3 1 आ जाता है हमारे पास। अच्छा जी, P of 3 1 आ गया। अब P of 3 को यहाँ पे पुट करूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P of 1 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। मतलब कि P of 1 फिर से वैलिडेट हो गया, क्रॉस चेक हो गया ना, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब मैं कुछ भी पेयरिंग कर लूँ, मेरे को पेयरिंग चाहिएगी, ठीक है। पेयरिंग कब हो सकती है, जब n इज इवन। n इक्वल्स टू और का केस लिख लेते हैं, सपोज n इक्वल्स टू 3 का केस देखना है, 1 2 3, ठीक है। इसमें P of 1 इक्वल्स टू 1, P of 2 इक्वल्स टू 2 एंड P of 3 इक्वल्स टू 3, ठीक है। P of, यहाँ पे P of 1 को मैं यहाँ पे अगर 2 रखता हूँ तो ये वैलिडेट हो जाएगा, ये दोनों का पेयर बन गया। लेकिन अगर P of 3 को किसी से करने की कोशिश करता हूँ, अगर 1 और 2 का मैंने पेयर बना दिया, तो P of 1 मेरे पास 2 आ गया और P of 2 मेरे पास 1 आ गया। तो मैं कैसे, अब P of 3 को मैं क्या कर सकता हूँ, P of 3 को अगर मैं 1 रखूँ तो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल्स टू 3, नॉट पॉसिबल, गलत हो गया। P of 3 को मैं अगर 2 रखूँ तो P of 2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, P of 2 1 है, तो गलत हो गया। तो 3 के पास अगर 4 होता तो मैं कर सकता था,
3 को 4 रख सकता था, 4 को 3 हो जाता मेरा, बट यहाँ पे 3 के लिए अब कुछ बचा ही नहीं, तो ये रॉन्ग है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर पॉसिबल नहीं है ना, तो इसका मतलब -1 प्रिंट कर दो भाई साहब। तो वो करते हैं, तो मतलब n परसेंटाइल 2 होगा, तो क्या करेंगे, मतलब अगर देख लेते हैं, अगर हमारे पास n है, अगर वो इवन होगा, तो हम क्या करते हैं, हम पहले 1 2 3 अप टू n बनाते हैं, इन दोनों को स्वैप करते चलते हैं। यहाँ पे n-1 होगा, इन दोनों को स्वैप कर देते हैं, और n ओड होगा तो सिंपल -1 प्रिंट करते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अब टेल एन आया, तो आप ये भी कर सकते हो कि 1 और 3 को पेयर कर दिया, 2 और 4 को, ऐसे 5 और 7 को, 6 और 8 को। बट जो इस चीज़ को करने में जो वो है ना सिंप्लिसिटी कोड की, वो ज़्यादा आसान है, तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, कोड पे चलते जल्दी से, इसके स्प्लिट विंडो में खोलते हैं, जूम करता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। हाँ, सिंगल एन कंटेन सिंगल इंटीजर एन, हमको इंट एन इनपुट में दे रखा है, एन को हमने इनपुट लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, एक वो बना लो 1 2 3 4 करके, वेक्टर इंट वी फॉर इंट I equals to 1, I less then equals to n, I plus plus v dot push back I। अब हमको स्वैपिंग करनी थी I और I plus 1 की, फिर आ जाएगा I plus 2 पे सीधा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, int I equals to 0, I से 0 से चालू होगा, while I is less than n, int temp equals to v of I, v of I equals to v of I plus 1, v of I plus 1 equals to temp, और फिर I plus equals to 2। ठीक है, उसके बाद पूरे वेक्टर को प्रिंट कर देंगे, फॉर इंट I equals to 0, I less than n, I plus plus cout vi। रन करके देखते हैं कुछ मिस तो नहीं कर रहे, कंपाइल रन में चल रहा है, कंपाइल रन में। सबमिट विंडो खोलता हूँ, ट्राइंग टू सबमिट इट, सबमिट हो जाएगा तो एक्सेप्टेड आ जाएगा, अदरवाइज वी हैव कमिटेड एनी मिस्टेक इन द एल्गोरिथम इन क्यू। इसको हाइड कर देता हूँ, इन क्यू है, रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट 1। क्यों भाई, प्रिंटिंग गलत कर, अच्छा वो ऑड के लिए तो हैंडल ही नहीं किया यार, सॉरी सॉरी सॉरी। इसको क्या करते हैं, हाँ, इफ आई इक्वल्स टू इफ एन परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 1, सी आउट -1, यहीं से डन 0 कर दो, यहीं से जाएगा ही नहीं ना। हाँ, शायद से डन 0 वाली प्रॉब्लम कर सकता है कुछ, बाकी तो एल्गोरिथम ठीक ही है। अगर रिटर्न 0 वाली प्रॉब्लम कर रहा होगा तो इफ एल्स में डाल दूंगा, उसको एल्स बना दूंगा। ये सब चलते, एक्सेप्टेड, ओके, एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। कोड की चिंता मत करना, कोड आपको मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ कि जैसे मैं एल्गोरिथम बताता हूँ ना, पहले तो एल्गोरिथम में खुद सोचने की कोशिश करो, एल्गोरिथम समझ में नहीं आता, एल्गोरिथम देखो, फिर खुद कोड में कन्वर्ट करो, बिकॉज आई थिंक जो कोडर होता है ना, उसको एल्गोरिथम चाहिए होता है। अगर कोई कोडर एल्गोरिथम से कोड नहीं कन्वर्ट कर पाता, तो अभी वो एक्सपर्ट लेवल पे नहीं पहुंचा है। तो पहले आप ट्राई करो कि आप एल्गोरिथम से कोड खुद बनाओ, ओके। ठीक है जी, नोट सेक्शन में चलते हैं, विंडो को क्लियर करते हैं, पेज को अपने क्लियर करते हैं और आगे चलते हैं। क्या लिखता है, प्रॉब्लम नंबर है हमारा राउंड 103, प्रॉब्लम नंबर ए। सो प्रॉब्लम 103 ए, इसका नाम है अराइवल ऑफ द जनरल। मैं पेन की थोड़ी विड्थ में कम कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा मोटा चल रहा है, ओके। जूम करते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या बोल रहा है। A Ministry of Defense sent a general to inspect the super secret military squad under the commander of the Colonel Super Duper. Having learned the news, the Colonel ordered to all N squad soldiers to line up on the parade ground. मतलब हमारे पास कितने soldiers हैं, N soldiers हैं हमारे पास, okay. By the military charter, the soldiers should stand in the order of non-increasing height of their height. Non-increasing मतलब कि
नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग, ओके, तो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा होना चाहिए उनको, इज प्रेफर मतलब कि वहाँ पे सबसे लंबा, यहाँ पे सबसे छोटा बंदा, ओके। However, the general is rather short-sighted and he thinks the soldiers are lined up correctly if the first soldier in the line has the maximum height and the last soldier has the minimum height. तो सोल्जर क्या, जो हमारा जनरल है वो शॉर्ट साइटेड है, उसको लगता है कि अगर मान लो हमारे पास हाइट्स का कह रहे हैं कि 2, 4, 10, 1, 6, 8, ठीक है, या हाइट्स है हमारी, तो सही तरीका क्या होता है इनका, 10, then 8, then 6, then 4, then 2, then 1 ये होना चाहिए था। बट वो कहता है कि अगर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1 है, तो बीच के मटेरियल का वो चिंता नहीं करता, वो हो सकता है 2, 4, 8, 6 भी हो, तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1 है तो ये ऑर्डर करेक्ट है। प्लीज नोट दैट द वे द अदर सोल्जर्स पोजीशन डज नॉट मैटर, एज आई सेड 2, 4, 8, 6 इससे उसको मैटर ही नहीं पड़ता, including the case when there are several soldiers whose height is maximum or minimum, only the heights of the first and the last soldiers are important. For example, consider the sequence of height 4, 3, 4, 2, 1, 1. Correct sequence is 4, 3, 1, 2, 2. Correct sequence is correct and this sequence is correct and this sequence is wrong because one should be at the last. Okay. Within 1 second the colonel will swap any two neighboring soldiers. मतलब कि मान लो यहाँ पे सोल्जर ए खड़ा है, सोल्जर बी खड़ा है, कर्नल को इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा ना, 10 टू मेक दिस अ करेक्ट ऑर्डर 10 शुड हैव कम हियर, तो हम ऐसे उठा के नहीं जा सकते सीधा, 10 को 4 का स्वैप करना पड़ेगा, 10 यहाँ पे 4 यहाँ पे, इसके अंदर 1 सेकंड लगता है, फिर 10 और 2 को करना पड़ेगा, 10 यहाँ पे 2 यहाँ पे, फिर उसके अंदर 1 और सेकंड, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 सेकंड का टाइम लगेगा। उसको चाहिए कितना टाइम, मिनिमम टाइम बताना है, मिनिमम टाइम मतलब कि मिनिमम स्वैप्स, वही तो हो गया। ठीक है, कैसे करेंगे जी, मैं कहता हूँ हमको एरे गिवन होगा A B C D E F G H, ठीक है, हमको एरे गिवन होगा, मान लो ये मैक्सिमम हाइट है और ये मिनिमम हाइट है, एम कैपिटल एम मतलब मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट मतलब ये, तो कैसे करेंगे इसको, इसको करेंगे यहाँ पे 1 फिर 2, इंडेक्स का क्या होगा, इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, तो एक दो दो ऑपरेशन तो इसको लगेंगे ठीक करने में, और एफ जी एच के लिए एक दो दो ऑपरेशन इसको लगेंगे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 + 2 = 4, इसको डायरेक्ट निकाल सकता हूँ क्या मैं इंडेक्स से, 2 कैसे आया, इसका इंडेक्स -0, तो 2 तो आ गया मेरे पास, मैक्सिमम का इंडेक्स -0, और इसका इंडेक्स कैसे आया 7 - 5 मतलब कि n-1 माइनस इंडेक्स ऑफ दिस, ठीक है। ये हमारा केस हो गया जब सी और एफ कोलिजन में नहीं है, बट लेकिन मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच ये हमारे पास एरे है, यहाँ पे है मिनिमम वाला और यहाँ पे है मैक्सिमम वाला, तो कैसे होएगा, अब इसका स्टेप्स देखना ढंग से, ओके। मान लो मैं पहले एम को ए के पास लेके जाना चाहता हूँ, मतलब ये पोजीशन पे, तो ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हो गया ई ये डी, फिर डी ये यहाँ पे था तो ई और सी का होएगा, तो यहाँ पे ई यहाँ पे सी। अब ये देखो कि एम जब यहाँ पे जा रहा है तो सी अपनी पोजीशन से ऑलरेडी यहाँ पे उठ के आ चुका है, ठीक है, फिर यहाँ पे तो आने के बाद वो यहाँ से एक दो और ले लेगा, तो दो और एक दो, ठीक है। अब सी को यहाँ से कितने लेने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, उसको पहले 5 लेने पड़ रहे थे, बट अब कितने लेने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 4, तो और ई को कितने लेने पड़े, 1, 2, 3, 4, 4 ई को लेने पड़े, सी को कितने लेने पड़े, 4, ठीक है। इंडेक्सिंग करते हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7, ई के लिए कितने आए 4 - 0, ठीक है, आ गए। सी के लिए अगर इसके साथ चलूँ तो कितना आना चाहिए, 7 - 2 = 5, बट आए कितने 4, तो इसका मतलब क्या है, जब अगर एम आई का इंडेक्स लेस देन एम आई हो तो क्या करेंगे, तो आंसर हो जाएगा जो हमारा ऊपर आंसर आया था ना, कि एम आई -0 प्लस n-1 माइनस एम आई, ये आंसर आया था ना, इसके अंदर से 1 और घटा देंगे, बस ये है। कैसे करेंगे देखते हैं, कोडिंग करते हैं सीधा। आई थिंक एल्गोरिदम बॉय ने बहुत अच्छे समझा दिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए एल्गोरिदम में कुछ भी। हाँ, फर्स्ट इनपुट लाइन कंटेन्स द ओनली इंटीजर n, int n हमको इनपुट में दे दिया, सी इन n कर लिया हमने।
C in n which represents the number of poses in the line, second and contingent। तो वेक्टर में मैंने स्टोर कर लिया वेक्टर इंट v बना देता हूँ। अब यहीं से मैं एक बार मैक्सिमम देख लेता हूँ कौन सा आएगा एलिमेंट। मैक्सिमम को इसलिए मैं पहले माइनस 199 कर देता हूँ और मिनी भी ऐसे ही निकाल लेता हूँ, उसको 199 कर देता हूँ। ठीक है, क्या फॉर int I equals to 0, I less than n, I plus plus int z, c in z, v dot push back z। ठीक है जी, मैक्सी को अपडेट कर दो, मैक्स ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैक्सी एंड z, मिनी इक्वल्स टू मिन ऑफ मिनी कॉमा z। मैक्सी मिनी आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, हमको दोनों के इंडेक्स निकालने हैं। इंट एम आई मतलब मैक्सिमम का इंडेक्स, कॉमा एम आई ये मिनिमम का इंडेक्स। फाइंडिंग मैक्सिमम इंडेक्स कैसे करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब मिनिमम स्वैप्स के लिए मैक्सिमम का सबसे पहले जो आ जाएगा वो चाहिएगा। फॉर इंट आई इक्वल्स टू आई लेस देन एन आई प्लस प्लस इफ वी आई इक्वल्स टू maxi mi इक्वल्स टू आई एंड देन ब्रेक। ऐसे ही मिनी के लिए लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें i इक्वल्स टू n माइनस 1 हो जाएगा। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ी बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। i जाएगा n माइनस 1 से ग्रेटर देन 0 तक, i माइनस माइनस ओके। इफ vi इक्वल्स टू मिनी देन स्मॉल एम आई इक्वल्स टू आई। ठीक है, ब्रेक कर दिया उसके बाद। अब इफ क्या था हमारा, इफ एम आई इज लेस देन, पहले एक बार आंसर बना लेते हैं। आंसर इक्वल्स टू 0, मैं कर देता हूँ मैं नीचे ताकि कोड दिख जाए। इफ इंट आंसर इक्वल्स टू इफ एम आई इज लेस देन एम आई, आंसर में से माइनस माइनस कर दो पहले ही, बाद में क्या आंसर कन्वर्ट कर दो। हमारा क्या था, एम आई माइनस 0 प्लस एन माइनस 1 माइनस एम आई, और उसके बाद सी आउट कर दो आंसर को। कंपाइल रन करके देखते हैं, एरर तो नहीं होना चाहिए, कहीं पे कोई कॉलन वगैरह मिस हो तो देख लेते हैं। नहीं है कोई एरर, डाल के देख लेते हैं। इनपुट 4 33 44 11 22 टू आंसर दोनों जगह। सेकंड टेस्ट के लिए चला के देख लेते हैं। 10 10 ओके। कंट्रोल सी सबमिट करते चलते हैं इसको। सबमिट की विंडो खोली, सबमिट का बटन दबाया एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स। रनिंग आ रहा है, रनिंग ऑन टेस्ट 23 एक्सेप्टेड। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अगेन बोल रहा हूँ, कोड की चिंता मत करना, कोड मिल जाएंगे आपको। और एवरेजनल हो गया था ड्रिंक्स 15th प्रॉब्लम पे, मतलब आज की 5th प्रॉब्लम पे। नोट्स एरिया पे चलते हैं जी, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आज ये है प्रॉब्लम बी, तो थोड़ा देख के करेंगे। ओके, तो इट सेज प्रॉब्लम, राउंड कौन सा है, 126 के प्रॉब्लम है बी। नाम क्या है इसका, ड्रिंक्स। इसमें लिखा है लिटिल वस्या loves orange juice very much, that's why any food and drink in his kitchen necessarily contains orange juice। there are n drinks in his fridge, n drinks है। the volume fraction of orange juice in the drink is equals pi percent, pi percent ध्यान रखना। ठीक है। One day Vasya decided to make himself an orange cocktail. He took equal proportions of each of the end drinks and mixed them. Then he wondered how much orange juice the cocktail has when the volume fraction of orange juice in the final drink। तो उसने एक बारी में क्या किया, इक्वल प्रोपोर्शंस मिक्स कर दी सबकी। मान लो कि सबकी 100 लीटर प्रोपोर्शंस मिक्स कर दी। ठीक है, सबकी 100, तो कितने हो गए हमारे टोटल, n इंटू 100 लीटर की ड्रिंक बन गई हमारी। ठीक है, अब हर किसी के अंदर 100 लीटर पी आई परसेंट था, तो हर किसी के अंदर जो हमारी परसेंटेज है वो सीधा वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो P1, इसके अंदर P1 लीटर ऑरेंज जूस होगा, फिर P2 लीटर होगा, ऐसे करते करते PN लीटर ऑरेंज जूस होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज जूस कितना हो गया, सिग्मा पी आई, आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। डन।
हमको बताना है वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज जूस इन द फाइनल ड्रिंक। ये हमारी टोटल वॉल्यूम है ऑरेंज जूस की, ये हमारी टोटल वॉल्यूम है पूरी कॉकटेल की। तो इसकी वॉल्यूम फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, इसको मान लो वाई बोल देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा वाई बाई एन इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला इंटू 100। तो 100 से 100 गया तो आंसर हो जाएगा वाई बाई एन। तो हमको बस क्या करना है, इनपुट लेंगे ना P1 P2 Pn का, तो उसको सम कर लेंगे और लास्ट में एन से डिवाइड करके आंसर प्रिंट कर देंगे। और याद रखना वाई को फ्लोट बनाना, बिकॉज आंसर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड इन फ्लोट। एज यू कैन सी आउटपुट इज एक्सपेक्टेड इन फ्लोट। कंपाइलर पे चलते हैं जल्दी से, अपने कोड एडिटर पे रिमूव करते पहले का कोड। इट सेज इनपुट क्या होगी, पहले इंटीजर एन आएगा, जूम कर लेता हूँ थोड़ा आपके बैटमेंट के लिए। सी इन एन करा हमने, उसका क्या करा हमने, फ्लोट बनाया वाई, फ्लोट वाई, उसको पहले जीरो साइन कर दिया। अब क्या करना है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस इंट जेड। उसका क्या लिखा है इसने, पी सारे एन के इंटीजर्स आएंगे तो इंट जेड के लिए सी इन जेड करेंगे अब, और वाई प्लस इक्वल्स टू जेड। लास्ट में क्या रिटर्न करना था, रिटर्न, रिटर्न नहीं सॉरी सी आउट करना होता है, सी आउट वाई बाय एन। ठीक है जी, चला के देखते हैं, सबमिट विंडो खोलते हैं इसकी। सबमिट बटन दबाया, लेट्स होप इट वर्क्स इन क्यू। रनिंग ऑन टेस्ट 1 2 एक्सेप्टेड। ओके जी, 5th प्रॉब्लम भी हमारी हो गई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी 6th प्रॉब्लम। 6th प्रॉब्लम पे चलते हैं जी, इंसोम्निया क्योर। इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। 6th प्रॉब्लम हमारी राउंड 105 प्रॉब्लम, 105 राउंड है हमारा। प्रॉब्लम नंबर है ये ए, ये है इनसोम्निया क्योर। देखते हैं प्रॉब्लम में क्या लिखा है। इट सेज 1 ड्रैगन, 2 ड्रैगन, 3 ड्रैगन, द प्रिंसेस was counting, she had trouble falling asleep and she got bored of counting lamps when she was 9. However, just counting dragons was boring as well, so she entered herself at the best she could. Tonight she imagined that all dragons were here to steal her. She was fighting them off. Every K dragon got punched in the face by the frying pan. मतलब कि केएथ को उसने मारा फ्राइंग पैन से। Every elf dragon got his tail shot into the balcony door. Elf tail गई उसकी। mth dragon got his paws गई उसके। Finally she threatened every nth dragon to call her mom. Okay. And he withdrew in panic. How many imaginary dragons suffered moral or physical damage tonight if the princess counted a total of D dragons? D मतलब total number of dragons. तो प्रॉब्लम कह रही है कि मान लो वो ऐसे काउंट करिए, ड्रैगन 1, ड्रैगन 2, ड्रैगन 3, ड्रैगन 4, ड्रैगन 5, ड्रैगन 6। तो मान लो के है हमारा 2, तो बोल रही है एवरी सेकंड, तो इसको उसने फ्राइंग पैन से मारा, इसको उसने फ्राइंग पैन से मारा, इसको उसने फ्राइंग पैन से मारा। एल है हमारा 3, इसको उसने फ्राइंग टेल से खींचा, इसको इसने टेल से खींचा, ऐसे ऐसे। ओके, हमको बताना है कितने लोग ऐसे घायल हो गए। अब आप बोलोगे इसके अंदर क्या है, सबका देखो कि डी से पहले मतलब डी बाय एन के क्या देगा हमको, स्मॉलेस्ट इंटीजर जिससे जो परफेक्ट डिविजिबल हो के का। सबके डी बाय ऐसे डी बाय के प्लस कर दो डी बाय एल में, प्लस कर दो डी बाय एम में, प्लस कर दो डी बाय एन में। करेक्ट अप्रोच, मैंने फर्स्ट अप्रोच यही लगाई थी, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे भी इंटीजर्स होंगे, 2 और 3 का एग्जांपल देखा हमने, 2 4 6 3 6 6 2 बार काउंट हो गया, लेकिन 6 इंजर्ड तो एक ही बार हुआ है। नंबर ऑफ ड्रैगन तो एक ही काउंट होगा, ये 2 बार काउंट हो गया। तो इसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके डी तक जाओ और देखोगे कितने बंदे घायल हो रहे हैं। ये इसका एल्गोरिथम है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे करना है। इसमें लिखा है पहले के फिर एल फिर एम फिर एन फिर डी, तो बना लेते हैं इंट के एल एम एन डी, फिर सी एन करते हैं के फिर एल फिर एम फिर एन फिर डी। अब लूप चलेगी आई इक्वल्स टू 1 से आई डी तक जाएगा, आई प्लस प्लस होएगा। आंसर बना लेते हैं पहले, काउंटर इंट आंसर इक्वल्स टू 0 इफ डी परसेंटाइल के इक्वल्स टू 0,
आंसर प्लस प्लस, और एल्स इफ यूज करना ताकि नीचे ना जाए, अगर ऊपर वाले में ही हो जाए तो एल्स इफ, यहाँ पे कंडीशन डी परसेंटाइल एल इक्वल्स टू 0, आंसर प्लस प्लस, एल्स इफ डी परसेंटाइल एम इक्वल्स टू 0, आंसर प्लस प्लस, एल्स इफ के एल एम हो गया, एन की बारी रह गई बस, डी परसेंटाइल एन इक्वल्स टू 0, आंसर प्लस प्लस। थोड़ा नीचे चलते हैं, हाँ लास्ट में लूप खत्म करो, आंसर को प्रिंट करो एंड जस्ट वेट एंड सी इफ द सॉल्यूशन इज करेक्ट। रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट 2, कहीं पे ना कहीं पे गलती हुई है, क्या गलती हुई है? चला के देखते, टेस्ट तो यही होना चाहिए आई गेस, अगर कुछ और ना हो तो। रन करते हैं, आंसर 0 था, हाँ 2 3 4 5 24, आंसर आया 24। ऐसा क्यों भाई, देखते हैं। आई इक्वल्स टू 1 और डी कर दिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आई करना था, सॉरी क्लासिक मिस्टेक, पता नहीं ध्यान कहाँ था, क्योंकि आई जा रहा है ना लूप में, तो अब हो जाएगा शायद सबमिट। in queue running on test 35, accepted. Okay, let's move on to the next problem, that is our seventh problem of our day, that is cupboards. पेज को क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज, ये प्रॉब्लम है राउंड 152 की प्रॉब्लम, राउंड था हमारा 152। प्रॉब्लम नंबर ए, प्रॉब्लम का नाम क्या है, कप बोर्ड्स, मतलब कबर्ड्स। ओके, जूम करके प्रॉब्लम पढ़ते हैं क्या है। वन फॉग स्टॉकम मॉर्निंग, Carlson decided to snack on some jam in his friend Lil Bro Svantesson's house. Fortunately for Carlson, there wasn't anybody in his friend's house. Carlson was not going to be hungry any longer, so he decided to get some food in the house. Carlson's gaze immediately fell on n wooden cupboards. तो हमारे पास n wooden cupboards हैं. Okay. Standing in the kitchen, he immediately realized that these cupboards have hidden jam stocks. Carlson began to fly greedily around the kitchen, opening and closing the cupboard's door, grab and empty all the jars of that jam that he could find. Now all jars of jam are empty. तो मतलब उसका फ्रेंड था, वो भी, उसने भी सारे जैम खाली शीशी रखी हुई थी, असली जैम तो उसने कहीं और ही छुपा के रखा था। As empty, Carlson has had enough and does not want to leave the traces of his stay so as not to let down his friend. Each of the cupboards has two doors, left one and right one. तो एक लेफ्ट डोर है, एक राइट डोर है। ओके, सो Carlson remembers that when he rushed into the kitchen, all the cupboards of left door were in the same position. Similarly, all the cupboards right doors in the same position. मतलब लेफ्ट के सारे सेम थे, चाहे तो वो सारे के सारे खुले हुए थे, अभी सारे के सारे बंद थे। ओके, ऐसे राइट के सारे के सारे खुले हुए थे, अभी सारे के सारे बंद थे। Carlson wants the door to meet this condition as well by the time family returns. Carlson does not remember the position of all left doors. Also, he cannot remember the position of all right doors. उसको ये याद नहीं कि लेफ्ट वाला खुला हुआ था या बंद था, या फिर ऐसे ही राइट वाला खुला हुआ था बंद था। उसको ये याद है कि सारे के सारे पोजीशन सेम थे, उसको ये नहीं पता कौन सा खुला हुआ था कौन सा बंद था, या फिर दोनों खुले हुए थे दोनों बंद थे। उसको ये नहीं पता कि दोनों खुले हुए थे दोनों बंद थे। नाउ Therefore, it does not matter to him in what position will be the all left doors or right doors. उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पोजीशन में होंगे. It is important to leave the all left doors in the same position and right doors in the same position. बस वो ये चाहता है कि सारे लेफ्ट डोर्स एक सेम पोजीशन में हो, चाहे तो वो ओपन रहे या क्लोज रहे, ऐसे ही राइट वाले सेम पोजीशन, चाहे तो ओपन रहे या क्लोज रहे. फॉर एग्जांपल, all the left doors may be closed and all the right ones may be open. Carlson needs 1 second to open or close a door of a cupboard. एक डोर को क्लोज करने में या ओपन करने में कितने सेकंड जाते हैं, 1 सेकंड जाते हैं.
Okay. He understands that he has very little time before the family returns, so he wants to know the minimum number of seconds t in which he is able to bring all the cupboard doors in the required position. Minimum टाइम निकालना है ताकि कार्लसन बच जाए, उसको चोरी पकड़ी ना जाए. क्या करेंगे? मान लो क्या करेंगे? लेफ्ट डोर्स को सबको एक पोजीशन में रखने का क्या सबसे बढ़िया है तरीका है कि अगर मान लो ओपन डोर्स 25 ओपन डोर्स थे और 15 क्लोज डोर्स थे, तो 15 को ओपन करना ज़्यादा आसान है ना, 15 सेकंड लगेंगे, जबकि अगर ओपन को क्लोज करेंगे तो 25 सेकंड लगेंगे. तो मिनिमम ऑफ ओपन क्लोज्ड लेफ्ट के लिए और सिमिलरली फॉर राइट, दोनों का सम आंसर हो जाएगा हमारा. कोड की तरफ चलते कैसे करेंगे इसको. हाँ जी, कैसे करेंगे. फर्स्ट इनपुट लाइन कंटेन्स सिंगल इंटीजर एन, हमको एन मिल गया, ठीक है. नंबर ऑफ कबर्ड्स इन द किचन, देन फॉर एन लाइंस ईच कंटेन टू इंटीजर्स एल आई आर आई, उसकी पोजीशन. अगर एल आई 1 है तो वो लेफ्ट डोर ओपन था, ऐसे ही आर आई 1 है तो ओपन था, 0 के लिए वो क्लोज है. मैं कह रहा हूँ कि इसको वेक्टर के अंदर स्टोर ना करके ना सिंपल ही काम कर लेते हैं, कितने ओपन कितने क्लोज लेफ्ट और राइट के लिए. तो इंट लेफ्ट क्लोज 0 है, अभी लेफ्ट ओपन 0 है, ऐसे ही राइट क्लोज 0 है और राइट ओपन 0 है, ठीक है. फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, int l comma r, c in l r. if l equals to 0 तो लेफ्ट क्लोज को प्लस प्लस करो, एल्स लेफ्ट ओपन को प्लस प्लस करो. ऐसे ही अगर r 0 है तो राइट क्लोज को प्लस प्लस करो, एल्स राइट ओपन को प्लस प्लस करो, ठीक है. उसके बाद क्या करो, सी आउट क्या करना है हमको, मिनिमम ऑफ लेफ्ट ओपन कॉमा लेफ्ट क्लोज प्लस मिनिमम ऑफ राइट ओपन कॉमा राइट क्लोज. इसको इंट में कन्वर्ट करके एक बार कंपाइलर करके देख लेते हैं किसी टाइप का एरर तो नहीं है. 0 क्यों आ रहा है, हमने कुछ अच्छा सी इन एन नहीं करा हमने, सॉरी ब्रो. 5 0 1 1 0 0 1 1 1, सॉरी गलत रन हो गया, कोई बात नहीं, सबमिट कर देता हूँ सीधा, मुझे इनपुट देने की जरूरत नहीं है. आई गेस कोड एल्गोरिथम तो ठीक है ही इसका. इन क्यू रनिंग ऑन टेस्ट 2 एक्सेप्टेड, ओके. अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, विच इज प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ आवर डे, दैट इज आई लव यूजर नेम. अपना नोट सेक्शन करते हैं क्लियर. सो नाउ वी आर ऑन प्रॉब्लम नंबर, राउंड है 1x9 एंड प्रॉब्लम टाइप है ए. इट सेज आई अंडरस्कोर लव अंडरस्कोर परसेंटाइल यूजर नेम परसेंटाइल, ओके. सो इट सेज वास्याज, इसको जूम कर लेता हूँ फॉर बेटर रीडिंग. वास्या adores sport programming. He can't write programs, but he loves to watch contests progress. Vasya even has a favorite coder, and Vasya pays special attention to him. One day, Vasya decided to collect the results of all the contests where his favorite coder participated and track the progress of his coolness. For each contest where this coder participated, he wrote out a single non-negative number, the number of points his favorite coder earned in the contest. Vasya wrote out the points for the contest in the order in which the contest run. Naturally, no two contests ran simultaneously. Vasya considers a coder's performance in a contest amazing in two situations. He can break either his best or his worst performance record. First, it is amazing if during the contest the coder earns strictly more points. Strictly देखना है यहाँ पे लिखा हुआ है strictly. Let me highlight it for you. Strictly जब भी आ जाता है ना तो लेस देन इक्वल्स टू बन जाता है लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन जाता है ग्रेटर देन, ठीक है. More points than he earned on the each past contest. Second, it is amazing if during the contest the
coder earns strictly less points that he earned only each past contest. A coder's first contest isn't considered amazing. Now he wants to count the number of amazing performances the coder had throughout his whole story history of participating in the contest. But the list of earned points turned out long and Vasya can't code. That's why he asks you to help him. क्या करना है? वो कोड में पार्टिसिपेट करता है, उसका स्कोर आता है, जैसे मान लो A B C D E F G, मान लो A था 300, B था 400, C था 500, D था 200, E था 600, F था 100। तो क्या होगा, हमारा आंसर पहले होगा 0। उसमें लिखा है कि फर्स्ट के लिए कुछ भी नहीं होता, वो अमेजिंग परफॉर्मेंस नहीं कंसिडर की जाती। ठीक है, तो हमारा एक वेरिएबल बनेगा मैक्सी जो कि होगा 300, और ऐसे हमारा मिनी होगा जो कि होगा 300। ठीक है, क्या करेंगे, अब आगे चलेंगे। आई यहाँ पे आया 400, इसने देखा कि 400 मैक्सी से बड़ा है, तो आंसर को प्लस प्लस कर दो 1, और मैक्सी को अपडेट करके 400 कर दो। फिर वो 500 पे आया, उसने देखा अभी मैक्सी से बड़ा है, इसको 500 कर दो, इसको प्लस प्लस करके कर दो 2। अब वो आया 200 पे, उसने देखा 200 तो 300 से कम है, तो इसको कर दो 200, इसको कर दो प्लस प्लस। 600 पे आया, इसको 600 करो, इसको 4 करो। हाँ 100 पे आया, 100 इस 200 से कम है तो इसको 100 करो, इसको 5 करो, तो आंसर हो गया 5 इन दिस केस। यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार इसको कंट्रोल सी करना पड़ता है। ठीक है, अब कोड क्लींस करते हैं। इसमें लिखा है फर्स्ट लाइन कंटेन सिंगल इंटीजर n, तो int n करके हमने सीन n कर लिया। ठीक है, इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा बेटरमेंट के लिए। नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट वेयर द कोडर पार्टिसिपेटेड, एन मतलब है जितने वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए। नेक्स्ट एन कंटेन स्पेस सेपरेटेड नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर, द पॉइंट्स व्हिच द कोडर हैज अर्नड, द पॉइंट्स आर गिवन इन द chronological order as the points do not exceed 10,000। ठीक है, हमको क्या क्या चाहिएगा, एक आंसर चाहिएगा टू स्टोर द आंसर, int maxi टू स्टोर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड राइट नाउ। एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले से कुछ परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता ना, तो एक z बना के फर्स्ट बना के उसको सी इन फर्स्ट कर लेते हैं ताकि फर्स्ट वाला आ जाए, बाकियों के लिए कर लेंगे सी, क्योंकि फर्स्ट वाले से फर्क नहीं पड़ता। तो मैक्सी को भी फर्स्ट रख देते हैं और ऐसे ही मिनी को भी फर्स्ट रख देते हैं कि इनसे मिनिमम आएगा तो मैक्सी, इनसे एक्सट्रीम होएगा तो चेक करेंगे। अब क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, 0 से नहीं लेके चलाएंगे, वो चलाएंगे 1 से, क्योंकि हमने फर्स्ट ले लिया ऑलरेडी इनपुट। आई n-1 तक जाएगी, आई प्लस प्लस करते हैं, इंट स्कोर बनाते हैं। नाउ सी इन करते हैं हम स्कोर को, स्पेलिंग गलत हो रही है स्कोर की बार बार। हाँ, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन मैक्सी, मैं इक्वल टू यूज नहीं करूंगा क्योंकि स्ट्रिक्टली मेंशन था, स्कोर ग्रेटर देन मैक्सी है तो आंसर प्लस प्लस, एल्स इफ स्कोर इज लेस देन मिनी तो आंसर प्लस प्लस। ऊपर वाले में क्या होएगा, मैक्सी अपडेट होके हो जाएगा स्कोर, ऐसे मिनी अपडेट होके हो जाएगा स्कोर। यहाँ पे कहीं पर मैंने गलत स्पेलिंग लिख रखी है, स्कोर ए कर रखा है मैंने, स्कोर एंड स्कोर 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 स्कोर। ठीक है, लास्ट में क्या कर देंगे, हम आंसर को प्रिंट कर देंगे। रन करके देखते हैं कंपाइलेशन एरर ना हो कोई। कंपाइलेशन एरर है स्कोर एल्स इफ स्कोर, यहाँ पे अच्छा स्पेलिंग गलत है थोड़ी। अब रन करके देखते हैं, अभी भी गलत है, मिनी मिनी को स्कोर करना था। सिंपल स्पेलिंग मिस्टेक्स आई डोंट कंसीडर देम एज एरर। हाँ चल गया, ट्राई करते हैं। जो सैंपल इनपुट गिवन है 550 200 150 200, हमारा आंसर आ रहा है 2, इसका आंसर भी आ रहा है 2, तो कोड हमारा ठीक चल रहा है सैंपल टेस्ट केस। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड see the result for the hidden test case as well. In queue running on test 36 accepted. Okay, thank you guys. Now next चलते हैं हम ट्रैम पे। इसके बाद हमारा एक और बच गया हेल्पफुल मैथ्स। ठीक है, दो हमारा है 9th क्वेश्चन। ओके, बड़ी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर राउंड है इसका 87, प्रॉब्लम है ए। नाम क्या है इस प्रॉब्लम का, ट्रैम। ओके, जूम करके देखते हैं प्रॉब्लम क्या कहती है। इट सेज लीनियर किंगडम हैज एग्जैक्टली वन ट्रैम लाइन
अच्छा, 1 ट्रैम लाइन, ओके। एन स्टॉप्स हैं, नंबरिंग उनकी कर रखी है 1 एन ऐसे करके, 1 2 3 4 करके एन तक। इन द ऑर्डर ऑफ द ट्रैम्स मूवमेंट एट द आई स्टॉप ए आई पैसेंजर्स एग्जिट द ट्रैम एंड बी आई पैसेंजर एंटर। ठीक है, तो आई स्टॉप पे क्या होता है, ए आई तो अंदर चढ़ते हैं, ओ ए आई तो क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। सॉरी, दिस विल बी एग्जिट करते हैं, और बी आई कितना क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ओके। The tram is empty before it arrives at the first stop. Also, when the tram arrives at the last stop, all the passengers exit, so it becomes empty. First stop पे आती है तो empty आती है, और last stop पे जाती है तो empty हो जाती है। ठीक है, बीच में passengers होते हैं। Sorry for bad drawing. Your task is to calculate the tram's minimum capacity such that the number of people inside the tram at any time never exceeds its capacity. Note that each stop all existing passengers exit before any entering passengers enters the tram. हमको बताना मैक्सिमम कैपेसिटी, सॉरी मिनिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ट्रैम ओवरलोड ना हो। तो मतलब क्या करना है, हमको बताना है कि एट एनी मोमेंट कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स प्रेजेंट है। और एक बात बता रखी है, ऐसा नहीं है कि मान लो हमारे पास मिनिमम कैपेसिटी तो 2 है, और अभी 2 पैसेंजर्स अलाउड, 2 पैसेंजर्स हैं, एक को उतरना है और एक को चढ़ना है, तो पहले उतरेगा फिर चढ़ेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि वो चढ़ जाएगा फिर 3 हो जाएगी, फिर ट्रेन के जैसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पहले उतरेगा, कैपेसिटी 1 होएगी, फिर चढ़ेगा, कैपेसिटी फिर से 2 हो जाएगी, पैसेंजर लिमिट। कैसे करेंगे, पहले पैसेंजर 0 थे, 0 रहने देंगे, इनपुट लेना चालू करेंगे, इनपुट लेंगे ए का, बी का, प्लस ए माइनस बी करेंगे, आंसर अभी रखेंगे एज 0, उसका करेंगे आंसर को मैक्स ऑफ एग्जिस्टिंग आंसर और पैसेंजर्स, ये करेंगे n टाइम्स। बस यही है, इसको एक बार रिमूव कर देते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट लाइन कंटेन सिंगल इंटीजर नंबर n, the number of tram stops the n line follow is contains two integers ai and bi। अच्छा, हमको क्या क्या चाहिएगा, int पैसेंजर्स अभी तो 0 है एट द मोमेंट, इंट आंसर वो भी 0 है, उसके बाद n तक जाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस करके इंट ए को बी बनाएंगे, सी इन करेंगे ए को और ऐसे ही बी को। उसके बाद क्या करेंगे, पैसेंजर्स जितने भी हैं उसमें से ए तो माइनस कर देंगे, बी प्लस कर देंगे। ये ऑब्वियस है कि पहला वाले पे एग्जिट वाले 0 होंगे क्योंकि ट्रेन खाली खाली आई है, और लास्ट वाले पे एंट्री वाले 0 होंगे क्योंकि कोई चढ़ेगा नहीं लास्ट वाले स्टेशन में, साथ सबको उतरना ही होता है। पैसेंजर्स इक्वल्स टू पैसेंजर्स माइनस ए प्लस बी। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे, आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एग्जिस्टिंग आंसर कॉमा पैसेंजर्स। यही करना था, ये डिस्कस किया था एल्गोरिथम में। सी आउट कर देंगे आंसर को और रन करके देखते, कंपाइलेशन एरर तो नहीं है, कोई नहीं आई। ट्रेन टेस्ट कर लेते, सैंपल इनपुट 0325424066। ठीक है, मतलब कोड हमारा ठीक होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। सबमिट टैब खोलते हैं, पेस्ट करा, सबमिट दबाया, एक्सेप्टेड हो जाए प्लीज, एक्सेप्टेड हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, जाके दैट इज आवर लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। इसको एक बार क्लीन करके चला जाता हूँ यहीं से। हाँ, नोट सेक्शन में गए, पेज को क्लियर किया एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज हेल्पफुल मैथ्स। तो ये हमारी प्रॉब्लम का राउंड है, राउंड हमारा 197, प्रॉब्लम है ए, इट सेज हेल्पफुल मैथ्स। ठीक है जी, जूम करके देखते हैं क्वेश्चन क्या कहती है। It says Xenia is a beginner mathematician, is a third year student at elementary school. She is now learning the addition operation. वो addition सीख रही है, the teacher has written down the sum of multiple numbers. People should calculate the sum. To make the calculation, the sum only contains one number, numbers 1, 2 and 3. तो मतलब
चाहे तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। वो ये नहीं लिखा कितनी बार होते हैं, हो सकता है 1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो होंगे 1 2 3 में ही। Still, that isn't enough for Xenia. She is the only beginning to count, so she can calculate a sum only if the summands follow in the non-increasing order. मतलब कि वो कैलकुलेशन तभी कर सकती है अगर वो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर मान लो 1 1 2 3 2 1 3 2 1 गिवन हो, तो वो इसको कैलकुलेट नहीं कर पाती। उसको कैसे चाहिए, अगर आप इसको ऐसे प्रेजेंट करो 1 1 1 1 1 1 देन 2 2 2 2 2 देन 3 3। हाँ, अगर ऐसे होगा तो वो चेक कर देगी, इसको ठीक कर देगी, ठीक है। शी कैन कैलकुलेट द सम 1 + 3 + 2 + 1, बट शी कैन कैलकुलेट 1 + 1 + 2 एंड 3 + 3, ठीक है। यू गॉट द सम दैट हैज रिटन ऑन द बोर्ड, रीड इन द सम्स एंड प्रिंट द सम इन द सच अ वे दैट जीना कैन कैलकुलेट द सम। हमको ऐसे स्ट्रिंग गिवन होगी 3 + 2 + 1, हमको इसको ऐसे अरेंज करना है 1 + 2 + 3, ताकि 1 सारे 1 2 से पहले आए, सारे 2 3 से पहले आए। ओके, कैसे करेंगे, स्ट्रिंग को इनपुट ले लेंगे, इनपुट ले लिया, उसके बाद लूप करेंगे, ठीक है। अगर 1 है तो उसको वेक्टर में पुश करेंगे, 2 है तो उसको वेक्टर में पुश करेंगे, 3 है तो उसको वेक्टर में पुश करेंगे, बाद में वेक्टर को सॉर्ट कर देंगे। उसके बाद आंसर स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। फिर से i = 0 से लेके वेक्टर डॉट साइज तक जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, वेक्टर का पहला एलिमेंट डालेंगे, उसके बाद अगर वो लास्ट एलिमेंट नहीं है तो प्लस लगाएंगे, फिर सेकंड, ऐसे चलता रहेगा। अगर वो लास्ट एलिमेंट है तो प्लस नहीं लगाएंगे। ये करना है, और हाथ में लास्ट में रिटर्न आंसर, सी आउट आंसर। कोड लिखते जल्दी से और आज की वीडियो खत्म करते हैं, लंबी हो चुकी है वैसे वीडियो। 10 क्वेश्चंस करने में टाइम तो लगता ही है ना। तो स्ट्रिंग एस सी इन एस करा हमने, फिर मैंने क्या बोला था, एक वेक्टर बनाएंगे, स्टोर द commands. So now for int I = 0, I less than s, I plus plus, if si equals to 1, v dot push back 1, ऐसे ही 2 और 3 के लिए। यहाँ पे एल्स इफ लगा देता हूँ ताकि कंप्यूटेशन टाइम बचे। इफ लगाने से भी चले जाता, लेकिन मैं एल्स इफ लगा रहा हूँ ताकि कंप्यूटेशन टाइम बचे, वो बार बार यहाँ पे 2 पुश करना था, यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी मेरी अपने नज़र में आई, ठीक है। क्या करना है, हमको स्ट्रिंग आंसर बनानी है, उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दो। क्या करना है उसके बाद, फॉर इंट i = 0, I less than v dot size I plus plus। क्या करो, आंसर प्लस इक्वल्स टू 2 स्ट्रिंग ऑफ vi। उसके बाद क्या करना है, इफ i equals to is not equals to v dot size -1, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू प्लस, प्लस ऑपरेटर लगा दो, लास्ट में सी आउट आंसर कर दो। रन करके देखते हैं, कंपाइलेशन एरर तो नहीं आनी चाहिए, आएगा इसको ही आ गई है। क्या आएगा, i लेस देन s कर दिया, सॉरी i s डॉट लेंथ करना था। रन करते हैं, लेंथ की स्पेलिंग गलत कर दिया, सॉरी। रन करा, हाँ चल हो गया। तो 3 + 2 + 1 के लिए प्रिंट करा, 3 + 2 + 1, अच्छा सॉर्ट नहीं करा, सॉरी सॉर्ट वाला लगाना भूल ही गए, तो सिंपल स्ट्रिंग ही हो गई। सॉर्ट v डॉट बिगिन v डॉट एंड, फिर से रन करा, 3 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 हो गया। सैम्पल एस के लिए चल रहा है, सबमिट के लिए देखते हैं। सबमिट बटन को क्लिक करा, एक्सेप्टेड, हेल्पफुल मैसेज एक्सेप्टेड, थैंक यू गाइस।
It was great discussing my session with you. Please don't forget to subscribe. Your subscription means a lot. Do like the video if you have learned anything from it. Okay, see you in the next video. Till then, enjoy and keep learning. Bye bye.